So, in the last class, we did talk about the independent events. Now, I am going to introduce a very important subtopic in probability referred to as Bayes' theorem. In latest CBSE sample paper, a 5-marker case study has come from this particular subtopic only. Also, in previous past so many years, every time we had a 6-marker question generally from this subtopic, but that may not be taken as a final rule कि every time 5-marker or something like that will come from this particular subtopic. Even we may have independent events or conditional probability or the next topic, random variables. So every topic is equally important. To understand Bayes' theorem, we initially need to understand the meaning of partition of a sample space. So what exactly we mean by a partition of a sample space? If, say, a set of events are E1, E2, and En, and they represent the partition of a sample space like this, if this is my sample space S, I may draw any circle also or any shape. It hardly matters. So just a sample space and containing the events, say E1, E2, and say मैंने यहाँ से ये कह दिया से E3, E4, and करते 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 ये आ गया En. So there are n different events given in this sample space. With a condition, first part, they are mutually exclusive. What does that mean? They are pairwise disjoint. E1 and E2 का intersection is phi. E1 and E3 का intersection is phi. E2 and E3 का intersection is phi, and so on. So there is no overlapping. That is the first condition. Second is union of all these events giving me the sample space. E1 union E2 union E3 union E4 करते करते union कर दो, I will get my sample space. Third is the by default condition. Probabilities of events must be positive. That is obviously is happening as probability is a real number always greater than 0. So पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस में दो चीजें हैं. सारे जो आपके इवेंट्स हैं दे शुड बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए. उसको हमने नाम दिया था एग्जॉस्टिव इवेंट्स. चेक करिए, ये टर्म आपकी क्लास 11th की ही है, राइट? ओ सॉरी, ये यहां लिखना था, ये इसके साथ आएगा. और इसका मतलब क्या हो जाता है? mutually exclusive events. Now comes the theorem of total probability. Before Bayes theorem एक छोटा सा रिजल्ट आएगा और फिर आप रियलाइज करेंगे ये आपको ऑलरेडी पता है. Let E1, E2, E3 and so on, En, be the partition of a sample space. You can easily check out in this diagram. तो वही सिचुएशन है जैसे पीछे मैंने बनाकर दिखा दिया था. E1 है, E2 है, E3 है, करते 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 En. So they are satisfying both the conditions, mutually exclusive and exhaustive events. फिर क्या कह रहे हैं? Let A be any event associated with S. अब एक नया इवेंट A आपको गिवन है, तो A अब एक नया इवेंट हो गया. Then probability of happening of A is depending on the previously already occurred events E1, E2, E3 and so on. तो E1, E2, E3 ये सब जो है ये मुझे ऑलरेडी पता है, जो पहले हो चुके हैं, जिसे एक्चुअल में हम कहते हैं प्रायरी
प्रोबेबिलिटीज जिनकी हमें ऑलरेडी पता हो. Then probability of A is given by this particular formula. पहले E1 हुआ, फिर E1 के होने से what is the probability of A? E2 इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, अब E2 गिवन है, उसके होने से A के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, and so on. So that will give me the formula for P of A. देखने में हो सकता है फॉर्मूला इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग लगे. एक एग्जांपल लूंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट उसको एक फॉर्मल नोटेशंस दे दिया गया है. नाउ प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से अब जो आएगा. आर्यन, एनी डाउट? आर्यन सिंह, Aryan Singh, please mute yourself. Okay, so check it out. This one solved example or this question. There are three urns. Urns का मतलब कोई भी बास्केट हो गई या ये आपका बैग्स हैं. Three urns हैं. This is say my first urn. This is the second, and this is the third urn. Containing three white balls and two black balls. टू में क्या बताया है, टू व्हाइट बॉल थ्री ब्लैक बॉल्स, और इसमें क्या बताया है, वन ब्लैक एंड फोर व्हाइट. ऑर्डर का ध्यान रखना, इन्होंने जानबूझ के यहां उल्टा कर दिया है, ब्लैक और व्हाइट को इंटरचेंज कर दिया. तो ये आपके पास तीन अर्न है और इसके अंदर गिवन है कि कितने कितनी बॉल्स है. राइट. अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं. There is equal probability of each urn to be chosen. What does that mean? अगर मैं कहता हूं कि E1 is the event of choosing first urn, E2 is the event of choosing second urn, E3 is the event of choosing third urn. तो don't you think so? कहा है ना कि equal probability है, कितनी हो जाएंगी? What is this probability? 1/3. This is simply 1/3. अब क्या कहा गया है, one ball is drawn from an urn chosen at random. इनमें से तीनों में से कोई भी अर्न को चूज करा, वो हमें नहीं पता कौन सा करा. कह रहे हैं वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चोजन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन? तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन. थिंक लॉजिकली. फिर वो बताता हूं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. अब मुझे पता नहीं कौन सा अर्न चूज हुआ, मैं मान लेता हूं अगर पहला अर्न चूज होता तब क्या होता. अब इसके चूज होने की भी तो प्रोबेबिलिटी पहले मुझे पता होनी चाहिए, वो P of E1 है. फिर मैं चाहता हूं इसमें से मुझे मिल जाए व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी. ए को मैंने क्या माना है, इवेंट ऑफ गेटिंग दी व्हाइट बॉल, जो मुझे निकालना है. तो दैट इज ये P of A है. फर्स्ट केस क्या पॉसिबल था, फर्स्ट वाला अनसेलेक्ट होता E1 इवेंट, पहले वो अनसेलेक्ट हो, फिर उसमें से व्हाइट बॉल आ जाए. नहीं तो क्या होता, सेकंड अनसेलेक्ट होता. अब उसके पहले अन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी P of E2, फिर उसमें से व्हाइट आ जाए. नहीं तो क्या होता, थर्ड अनसेलेक्ट होता,
और उसमें से व्हाइट बॉल आ जाती। यही तो आपके पास तीनों पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं। अगर ये आपने कॉमन सेंस से सोच लिया, इसके बाद तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। एक बार इस चीज को रिलेट करने की कोशिश कीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू। तो व्हाट विल हैपन, अब पी ऑफ ई वन कितना था, 1/3। और व्हाट इज पी ऑफ ए बाय ई वन, सोच के बताइए, व्हाट इज पी ऑफ ए बाय ई वन। 3/5। यस, इस नोटेशन को अगर आप ध्यान से समझें, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बस अब कंडीशनल में क्या होता है, ये गिवन है, E1 गिवन है, E1 गिवन है का मतलब यहां आ गया है। अब ये मुझे पता है, अब इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी, ए की। ए मतलब व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल की इसमें प्रोबेबिलिटी थी 3/5, दैट्स इट। प्लस E2 1/3। अब इसका मतलब तो हमें क्विकली पता है, सेकेंड अर्न में से व्हाइट बॉल, विच इज 2 बॉल्स व्हाइट हैं और टोटल 5 बॉल्स हैं। नहीं तो थर्ड अर्न और इसमें से व्हाइट बॉल, सिंप्लीफाई। इनफैक्ट यहां 3 + 2 + 4/15 सेम एलसीएम आ जाएगा, विच इज 9/15, योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इतना ये सब चीजें तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। Coming to the extension of this multiplication theorem, finally Bayes theorem. If E1, E2 up to En are n non-empty events which constitute a partition of a sample space such that E1, E2 are pairwise disjoint and their union is the sample space. So simple conditions हो गई ना कि वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए। फिर ए इज एनी इवेंट, और अब ए का मतलब जो नई चीज हो गई वो मेरे को गिवन होगा बेसिकली। देन फार्मूला कह रही है पी ऑफ ई आई बाय ए इज गिवन बाय दिस। अगेन फॉर्मूला देखने में तो ये नोटेशन वाइज थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो लेट मी कंसीडर वन सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। मान लीजिए किसी केस में दो इवेंट्स हो गए E1 एंड E2। अब वो दो केस हैं या तीन हैं या चार हैं, सिलेबस में मैक्सिमम चार हैं, जनरली एक्सपेक्ट करिए तीन का। तो E1 E2 मान लीजिए हो गए आपके पास ऑलरेडी, और ए अब आपके पास एक नया इवेंट गिवन है। इस केस में अगर मुझे फार्मूला डराइव करना है इसका P ऑफ E1 बाय ए, ये रहा, दिस इज नॉन एज पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटीज, जो हमें निकालनी है, जो फ्यूचर में होने का प्रिडिक्ट कर रही है। तो P ऑफ E1 बाय ए बाय दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1। समझ आ रहा है इससे देखकर ये कैसे लिखा गया होगा। और डिवाइड में क्या कर दो, जितने भी इस तरह के केस पॉसिबल हो उनका सम कर दो। मतलब या तो E1 के साथ हो सकता था ये टर्म, और दिस टर्म में हैपन विद E2, क्योंकि मैंने कहा हमने अगर सिर्फ दो इवेंट्स एज्यूम करें।
स्टिल कंफ्यूजिंग? चलो एक और केस देखिए। मान लीजिए किसी सिचुएशन में तीन इवेंट्स हैं, E1 E2 E3, और ए अब एक नया इवेंट जो हमें गिवन है। इस केस में अगर मुझे फॉर्मूला बाई चांस मान लो डराइव करना है P ऑफ E3 बाय ए का, तो नाउ कैन एनीवन हेल्प मी आउट? क्या करा जाए, क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? PE3 to P of PA upon E3. to A upon E3. गुड, ठीक है, न्यूमरेटर। और नीचे सब ऐसी मतलब E1 के साथ हो जाएगा, E2 के साथ हो जाएगा, सबको प्लस कर देंगे। E1 के साथ होगा, सिमिलर टर्म विद E2 के साथ आ जाएगी, एंड सिमिलर टर्म E3 के साथ आ जाएगी। दैट्स इट। नाउ द लास्ट थिंग टू ऑब्जर्व, लुक एट दिस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे सिर्फ फोकस करिए। डोंट यू थिंक सो दिस इज नथिंग बट P ऑफ A ओनली? डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो पिछला मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है, P ऑफ A। चेक करो, यही वाला फॉर्मूला तो आ रहा है। तो इनफैक्ट इन द बेस थ्योरम the denominator will be nothing but this denominator will be nothing but giving me P of A. Examples will make it more clear. सबसे पहला काम सिर्फ ये आप समझ लो कि भाई दो इवेंट्स हैं, तो P of E1 by A, ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है। With practice, believe me, every student will be able to write the answer in a single step. डायरेक्ट हमें चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्टेप में आप आंसर सोच पाएंगे। बट वही है, फॉर्मूला लिखना, रीजन आउट करना, प्रोबेबिलिटीज अलग से बताना, बोर्ड के अंदर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी। दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज अगर एक बार लॉजिक को आपने समझ लिया, एक्चुअली विच इज वेरी इजी, तब तो आप आराम से ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। और प्रोबेबिलिटी की खासियत यही है कि अगर एक बार आपने लैंग्वेज से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस क्वेश्चन में कंडीशनल लगना है, या इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, या बेस थ्योरम, अब आपके पास तो सिलेबस में 3 ही सब टॉपिक है और एक रैंडम वेरिएबल, वो बिल्कुल अलग तरह की पहचान है। तो इफ इट इज बीइंग आइडेंटिफाइड कि ये बेस थ्योरम का है, थिंक ऑफ डराइविंग अ फार्मूला लाइक दिस। अब इस फॉर्मूला में जो RHS में टर्म्स आ रही हैं, आपको वो सारी की सारी उनकी प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में ही गिवन होंगी। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन होंगी। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई के बाद उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है एंड सिंप्लीफाई, दैट्स इट। चेक आउट दिस क्वेश्चन। इससे अब आपको कंसेप्ट शुरू होगा क्लियर होना, क्योंकि थ्योरी से कई बार नहीं आता। चलो लेट्स गो टू प्रैक्टिकल। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls. 3 red and 4 black balls, while bag 2 contains 5 red and 6 black balls. तो इस तरह से डायग्राम के थ्रू बनाकर ही हम करेंगे तो इजी लगेगा। One ball is drawn at random from one of the bags. Again, we are not given कि भाई कौन से बैग से, या 1 हो सकता है या 2, बट आगे एक और चीज बताइए, and it is found to be red.
फाउंड होने का मतलब ये चीज मुझे अब गिवन हो गई है, ये तो मुझे पता है ना, तो ये फाउंड हो गया। तो इसे देखकर मैं पहले ही एक इवेंट ए डिफाइन कर दूंगा कि कौन सी बॉल मिली है, रेड कलर बॉल इज फाउंड। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, और फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू से। अब इसे देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी से हाउ मेनी इवेंट्स आई एम गोइंग टू डिफाइन। ऑफ कोर्स दो बैग्स हैं, अकॉर्डिंगली समझ आ जाएगा टू इवेंट्स। तो E1 क्या हो गया इस लैंग्वेज से पढ़कर, कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक वन, और इससे आ जाएगा इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। तो अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। तो सेकंड से हो, और एक चीज आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मेन के आपको P ऑफ E2 बाई A निकालना है। प्लीज एक बार इसे ध्यान से चेक करिए, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। अब वो अपने आप समझ आ रहेगा, अगर तीन बैग्स होते तो तीन इवेंट्स हो जाते, E1 E2 E3, और फिर जो चीज मुझे गिवन है उसे देखकर इवेंट ए डिफाइन हो जाता है। एंड बिलीव मी, अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया, आपका 50% क्वेश्चन तो हो चुका है। ये भी समझ लीजिए कि आपको P ऑफ E2 बाय A निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू से ड्रॉ हो। पर एक चीज अब आपको पहले से गिवन है कि रेड बॉल इज फाउंड, ये निकालना है। अब आप चेक करिए, वी नो P ऑफ E2 बाय A किसके इक्वल होगा फार्मूला, ये अब मैं क्विकली लिख दूं, आइडेंटिफाई हो चुका है अब तो, कि ये आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं लाइक दिस, और रीजन आउट कर देना कि भाई ये फार्मूला अचानक से कहां से आ गया, इट इज बाय बेस थ्योरम। नाउ व्हाट इज P ऑफ E1, व्हाट इज P ऑफ E2, व्हाट इज P ऑफ, यस। अब आपको देखो RHS के फार्मूला में जो जो टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटीज, बस वो सोचिए। E1 का मतलब बॉल बैग वन से ड्रॉ हो, E2 का मतलब सेकंड बैग से, ऑफ कोर्स दे आर हाफ हाफ। फिर A बाय E1 का मतलब कंडीशनल है, E1 हो गया, ये गिवन है, इस बैग से A हो जाए, A माने रेड वन। व्हाट इज दिस, P ऑफ A बाय E1, 5/7, नो, A by E1, 3/7, 3/7. yes, it is 3/7। 3 red balls हैं out of total 7 balls, and what is P of A by E2, 5/11। बिल्कुल सिंपल है, यहां से E2 हो गया आपकी बार गिवन है, इसमें से रेड बॉल 5 रेड बॉल हैं आउट ऑफ 11, तो देयरफॉर P ऑफ E2 बाय A, या तो फॉर्मूला बाद में लिख देते, ये चीज ना पहले ये बता दो सारी प्रोबेबिलिटीज, और फिर यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है ये, और डिवाइड में देखो क्या आएगा, हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/11।
It is about taking LCM and simplifying. हाफ तो वैसे कॉमन होके कैंसल हो जाएगा ऊपर और नीचे से, और फिर एलसीएम और सॉल्व कर लीजिए। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ आ गई तो आगे धीरे धीरे चीजें इजीली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। Check out another question. Given three identical boxes, 1, 2 and 3, यही है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये 3 बॉक्स मान लिए ऐसे, बॉक्स 1, 2 and 3, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। बॉक्स 1 में क्या है, दोनों गोल्ड कॉइन है। बॉक्स 2 में बोथ आर सिल्वर, एंड बॉक्स 3 में देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। तो यहां तक तो पढ़ने के बाद सिर्फ ये डायग्राम बना है। अब ध्यान से समझिए। A person chooses a box at random and takes out a coin. Which box? Unknown, हमें नहीं पता, तीनों में से ही कोई एक बॉक्स है। बट साथ में अब ये क्या कह दिया, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड। ये चीज मुझे गिवन बता दी गई है कि आपको क्या मिला है, गोल्ड कॉइन इज फाउंड। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, what is the probability? What is the probability? Helping me to having the number of events. और वो क्या पूछा, that the other coin in the box is also gold. पहली बात, how many events would be there? कितने इवेंट्स होंगे? Anyone? 3। Of course, 3 बॉक्सेस हैं, आइडिया अपने आप लग जाएगा, 3 बॉक्सेस। तो अब आप चेक करिए, the other coin in the box is also gold. ये किस बॉक्स को रेफर कर रहे हैं? एक कॉइन तो ऑलरेडी गोल्ड आ चुका है, अब दूसरा भी गोल्ड आए, ये कब पॉसिबल है? सॉरी, फर्स्ट बॉक्स को। ऑब्वियसली यस। सी, अब इसमें मैथ्स नहीं है, इट इज अ सिंपल कॉमन सेंस। बार बार मैं ये बोलूंगा, नीड टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर एक गोल्ड गिवन है, मिल गया, दूसरा भी गोल्ड हो, वो पॉसिबिलिटी सिर्फ बैग 1 से है। तो इवेंट इवन क्या मैंने ले लिया कि आपके पास बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड, ये क्या हो गया, बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड, बॉक्स 3 इज सेलेक्टेड। और आपको निकालना क्या है, ये आपने लॉजिकली सोच लिया ना कि आपको E1/A निकालना है। अब आपको क्या क्या वैल्यूज पता है, व्हाट इज P ऑफ E1? 1/3। सोच के देख लीजिए, ये कोई भी बॉक्स सेलेक्ट हो सकता था, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3। ऑल्सो व्हाट इज P ऑफ A/E1? 1। यस, गुड। आप ध्यान से सोचिए, कह रहे हैं E1 हो गया, ये गिवन है पहला बॉक्स, और इसमें से A हो जाए, गोल्ड आ जाए, तो गोल्ड तो दोनों ही गोल्ड थे, तो दैट इज ऑलवेज 1। बस ये हो गया, तो व्हाट इज P ऑफ A/E2?
आपको जो मॉडल चाहिए Zero. होगा 0. यस दिस इज जीरो, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी जीरो है, और थर्ड में से गोल्ड की 1/2. 1/2। यूजिंग बेस थ्योरम, ये पेपर में कैसे लिखना है ना, इसीलिए पूरा बता रहा हूं। बेस थ्योरम, P of E1 by A, इट इज ओनली अबाउट राइटिंग द फॉर्मूला, और वो क्या बनेगा, E1 A by E1। और तीनों टर्म्स इस तरह की जो आएंगी, यू विल राइट देम ओवर हेयर। आंसर तो मैं फिर बता रहा हूं, मैं एक लाइन में लिख सकता था क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, बट पेपर में आपको पूरा लिख कर दिखाना है। इनटू P of A by E3। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कितना आ गया यहाँ, 1/3 इंटू 1, और नीचे भी 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। थ्रू आउट 1/3 आपके सामने कॉमन निकल के कैंसल हो रहा है। सिंप्लीफाई, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चैट बॉक्स में यस या नो। ओके ठीक है, तनिष गुप्ता, ओके, आर्यन पांडे, केशव, आर्यन सिंह, ठीक है, कार्तिक, सुनिधि, तनिष्क गर्ग, नमन, परिधि, सार्थक, लक्ष्य, संजना, मन्नत, तन्मय, आकांक्षा, हिमांशी आहूजा, चेष्टा, जयादित्य, हिमांशी भास्कर, कौशल। ओके, नाउ इट इज योर टर्न। रीड द क्वेश्चन और कम से कम आइडेंटिफाई द इवेंट्स, कौन कौन से होंगे और क्या निकालना है। आई एम वेटिंग। तो हु कैन हेल्प मी आउट, हाउ मेनी इवेंट्स। अच्छा, प्रणव ने बाद में यस करा था, ओके चलिए। हाउ मेनी इवेंट्स, 3 3। और गिवन क्या है, defective bulbs. ओके। तो ये दो Bulbs. चीजें मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना था, ताकि अब मैं सीधा देखो क्या शुरू करूंगा लिखना, E1 E2 E3 और ए मतलब जो चीज गिवन है, नॉर्मली मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। चलो, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोर्ड्स, मशीन्स ए बी सी manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the boards. Of their outputs, 5, 4 and 2% are respectively defective. यहां तक तो चलो आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है। अब क्या कह रहे हैं, a bolt is drawn at random from a product and
is found to be defective. Defective bolt is found. What is the probability that it is manufactured by machine B? तो हम यहां इवेंट क्या डिफाइन करने वाले हैं? बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, प्रॉपर लिखना ये बोर्ड में, फिर बता रहा हूं, इवेंट्स को लिखने का ही एक नंबर होता है, ये बाय सी। और आपको क्या निकालना है? एनीवन? H2 by E, मतलब E2 by A. E2 by A, गुड। अब आपको ये तो पहचान बन चुकी है, आई बिलीव, कि भाई आपको बेस थ्योरम लगानी है, राइट? अब बेस थ्योरम के फॉर्मूला में कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? अब मैं सिर्फ उन पे फोकस करूंगा। आप चेक करिए, P ऑफ E1 मुझे चाहिए, E2 चाहिए, E3 चाहिए, और क्या चाहिएगा फॉर्मूला के हिसाब से? A बाय E1, A बाय E2 एंड A बाय E3। और क्वेश्चन में ये आपको सब कुछ गिवन है। नाउ व्हाट इज P ऑफ E1? 25 by 100. See, this time round I will not take it 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. पिछले क्वेश्चंस में कुछ भी गिवन नहीं था, तो वो कॉमन सेंस था कि इक्वल होगा। बट अब की बार तो आपको बता दिया है 25% है इसका यहां से मैन्युफैक्चरिंग, 35% एंड 40%। व्हाट इज P ऑफ A बाय E1? अब डिफेक्टिव की बात हुई है, अभी तक ऊपर डिफेक्टिव का कुछ भी रोल नहीं है। 5 by 100 of 25 by 100. No, 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 no. Of their output, 5% are defective. So simply it is 5 by 100. नहीं, जो आउटपुट आया उसका 5% है ना? राइट, तो वो आउटपुट का ही 5 by 100 होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लैंग्वेज कंफ्यूजन यहाँ पर, जो बोर्ड के अंदर ये कई बार पहले भी डिस्कस हो चुका है, कि कई बार ये परसेप्शन होता है, हमें लगता है, आई डू एग्री विद यू वट एवर यू आर सेइंग, कि लगता है कि भाई उसका होना चाहिए, तो मतलब 5 by 100 किसका? 25 by 100 का। बट एक्चुअली लैंग्वेज समटाइम्स मे बी डिसेप्टिव इन दिस केस, बट ये वैल्यू सिंपली 5 by 100 है। इस चीज का प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यू कैन नॉट क्लेम फर्दर के लैंग्वेज से तो मुझे ऐसा लग रहा था। ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड की, लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी ही रहती हैं। आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स, तब आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि दैट इज टू बी टेकन ओनली एज, देन फर्दर 4 by 100 एंड 2 by 100। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, वो आप बेस थ्योरम से लिख देंगे। और चेक करिए, मैं जानबूझ के इसको सिस्टमैटिकली एक दूसरे के नीचे लिखता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या होगा। E2 वाला था ना, तो E2 वाले दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और नीचे तीनों केसेस लिख दो, मतलब 25 by 100 इंटू 5 by 100 प्लस 35 by 100 इंटू 4 by 100 प्लस ये वाला वैल्यू 40 by 100 इंटू 2 by 100। और लास्ट थिंग, डू रिमेंबर, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट मत कर देना यहीं पर, कि भाई 1/4 कर दिया इसे, या इसे 1/20 कर दिया। अननेसेसरी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी। अब क्या हुआ, 100 एक साथ रखने से हर एक में से ये आपका 10,000 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। और फिर आप चेक करेंगे कि 5 कॉमन निकाल के आप फिर से कैंसिल कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को इजी बनाइए। 5 कैंसिल करा तो चेक करो 28 बचेगा, फिर 25 प्लस 28, 5 कैंसिल करा 8, यस 16। सॉल्व इट, योर रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप ये लोअर फॉर्म में लाकर शुरू कर देते, खुद करके देखना, अननेसेसरली एलसीएम लेना और कैलकुलेशंस आपकी बढ़ जाएंगी।
सो आई स्टॉप टिल दिस क्वेश्चन। कंप्लीट रखिए यहां तक अपना काम। वेरी सिंपल थिंग, मैं फिर बता रहा हूं, इजी है। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस और समझना पड़ेगा। ओनली ये वन क्वेश्चन तो क्वेश्चन, रटने जैसा हो गया। वो प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है, ये कि ये 5/100 ही क्यों रहा है, वाई नॉट इंटू 25/100। वो यहाँ पर ये स्पेसिफिकली ये डाउटफुल रहता है, नॉट ओनली हैपनिंग विद यू, ये हमेशा से ये बना है प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन सिर्फ मैं होमवर्क के लिए आपको अलग से दे रहा हूं, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, नाउ यू कैन एग्जिट द क्लास।